Hello everybody, welcome back to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem When My Play Was With Thee by Rabindranath Tagore. So Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 and he died on 7th August 1941. He was also known as the Bard of Bengal and Gurudev. He was a famous musician, poet, artist, and he won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his work Gitanjali. So this particular poem, When My Play Was With Thee, so it was published in his collection Gitanjali in 1910 और इसे सॉन्ग नंबर 97 भी कहा जाता है. So what is so particular or important about this poem? That in this poem, Tagore has shown gods as two different perspectives. So what is that? In the first stanza, you can see Rabindranath Tagore, he has shown God as his friend. वो गॉड को अपने फ्रेंड की तरह दिखाते हैं कि गॉड जो हैं वो सबके भगवान तो हैं, बट वो पोएट के साथ अपने दोस्त की तरह वो खेलते हैं. और सेकेंड स्टैंजा में जब वो बड़े हो जाते हैं, यू कैन सी दैट ऑल द पीपल दे आर बोइंग डाउन बिफोर गॉड. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. When my play was with thee, I never questioned who thou wert. So here thee means you, that is old English. और ये किसको रेफर कर रहा है? This is used for God. तो पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं when my play was thee, I never questioned who thou wert. Thou means you. When I was playing with you, जब पोएट छोटे थे तो वो जब गॉड के साथ खेल रहे थे, आई नेवर क्वेश्चन हु आर यू. तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि पोएट और गॉड दोनों एक साथ खेल रहे थे. तो ही इज टेलिंग दैट आई नेवर क्वेश्चन हु आर यू. आप कौन हो, मैंने ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा. आई वॉज थिंकिंग यू आर माई फ्रेंड. मुझे लगा आप मेरे दोस्त हो और इसीलिए हम दोनों खेल रहे हैं. I know nor shyness nor fear, my life was boisterous. So boisterous means full of enthusiasm, जो बहुत मस्ती भरे होते हैं. So the poet is saying that I did not know shyness. मुझे shyness का पता नहीं था, मुझे डर का पता नहीं था. I could not understand all of these feelings. हम जब खेल रहे थे मुझे ना शर्म आ रही थी, ना मुझे डर लग रहा था आपसे. ये सारी फीलिंग्स तो मुझे पता ही नहीं थी. In the early morning, thou wouldst call me from my sleep like my own comrade. Comrade means friend. And lead me running from glade to glade. So the poet here is telling that when every morning he would woke up and they would play from here and there. हर सुबह जो गॉड हैं वो उठाते थे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फील्ड्स में इधर से उधर वो दोनों खेला करते थे. एंड वी वुड रन इन द फॉरेस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. दे वुड रन इन द फॉरेस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स. जैसे वो दोनों बहुत पक्के दोस्त हैं और वो दिन भर जंगलों में फील्ड्स में वो खेला करते थे. On those days, I never cared to know the meaning of song thou sangest to me. So he is telling that in those days when I played with you, जब बचपन में हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, I never thought to know the meaning of the song. आप जो गाना गाया करते थे, मुझे वो गाने का मीनिंग मुझे जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी. मुझे समझ में नहीं आया और मैं जानना भी नहीं चाहता था. आई कुड ओनली रिमेंबर द ट्यून. सो द पोएट इज टेलिंग दैट आई जस्ट ओनली रिमेंबर द ट्यून. और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. Only my voice took up the tunes and my heart danced in the gardens. So again poet here is telling that our song was your song, that the song that we used to sing. उनको तो समझ में नहीं आ रहा था बट वो उनके साथ हम कर रहे थे, मीन्स उनके साथ गाए जा रहे थे. Your song was melodious. I could not understand the words, but I could only catch up the tune. The songs whatever that you were singing, I could not match it up. मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था, बस आपके पीछे पीछे मैं उसे गाए जा रहा था. Now when the play time is over, और जब हमारा खेलने का टाइम ख़त्म हो चुका है, what is this sudden sight that is come upon me? जब हमारा वो खेलने का उम्र ख़त्म हो गया, हमारा खेलना ख़त्म हो गया, what is the sudden sight that has come up to me? ये अचानक मुझे क्या दिख रहा है और मैं ये क्या देख रहा हूँ? What I can see in front of me? मुझे मेरे सामने ये क्या दिख रहा है? The world with eyes bent upon thy feet stands in awe before its silent stars. So what I can see?
द होल वर्ल्ड इज बोइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। तो पोइट ये कह रहे हैं कि मैं अभी क्या देखता हूँ कि जो ये सारा ब्रह्मांड है, सारा संसार है, ये आपके आगे झुका हुआ है। दे आर लुकिंग एट योर फीट एंड यू आर द गॉड। मैं ये क्या देख रहा हूँ, सारे जो लोग हैं ये आपके सामने झुके हुए हैं, आपके चरणों में ये आश्रय मांग रहे हैं। मीन्स दे वॉन्ट सम प्लेस एट योर फीट एंड यू आर द गॉड, यू आर द यूनिवर्स। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। और इस पोएम में पोइट ने ये चीज़ दिखाने की कोशिश की है कि ये दिखा रहे हैं कि गॉड का जो दो डिफरेंट साइड्स हैं, कि गॉड जब छोटे थे वो पोइट के साथ कैसे खेलते थे, वो बहुत मज़े से वो इन्जॉय करते थे, खेला करते थे। पर जब वो बड़े हुए तो गॉड कैसे सारे लोग गॉड के पास चले गए और उनसे हेल्प मांगने लगे, उनके ब्लेसिंग्स मांगने लगे। बट गॉड ये नहीं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा नहीं, मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। गॉड इज़ नेवर टेलिंग दैट। गॉड इज़ टेलिंग दैट इफ़ यू प्रे मी आई लव यू, एंड इफ़ यू प्ले विथ मी आई विल ऑल्सो प्ले विथ यू लाइक अ स्मॉल चाइल्ड, एंड आई विल एन्जॉय द प्रोसेस। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।